development projects and has established his name in all over India in the defense sector. It's my privilege to introduce Siddharth sir. I will hand over to HOI sir to say something, followed by HOD madam. Thank you, Abhay sir. On behalf of Sage University, Department of Mechanical Engineering, I am Dr. Akhilesh Upadhyay. Welcome you, Siddharth sir. Definitely, namaskar sir. Definitely, our all participants are going to learn something new from you, from your vast experience, as Abhay sir mentioned. And after lockdown, I request you to visit our campus and just guide our students as well as our faculty member physically, because now this time we are meeting you virtually, but I want a meeting with you physically. Sure. Welcome sir. Thank you sir. HOD madam, please. Hello. Good morning, Siddharth sir. Good morning. Welcome to SIRD Mechanical Engineering Department. And in the present scenario, your topic is very essential. You have to discuss the benefits and the scope of the entrepreneurship. Definitely, participants, students, faculty will get benefited by your session. And we always welcome you to our university campus after. So, thanks to you for sparing your precious time for us. Abhay sir. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, madam. Sir, आपने सबको mute कर दिया. Yes, I sir. request Pulkit sir. Yeah. I request you to please run that Sage video. Then we will hand over to Siddharth sir and have a blistering 40 minutes session. और एक और request है जो लोग joined है, ये session की 40 मिनट की समय सीमा यदि terminate हो जाता है तो उसी ID पे फिर से log in कर लीजिएगा please. This is my humble request to all of you. Pulkit sir, please run that video so that we will hand over to Siddharth. Yeah, sir. Pulkit sir, you are muted. Please unmute yourself. Sir, actually, it's not working, sir. Actually, laptop में. So. Okay. Yeah. Okay, so hand over to Siddharth sir and we'll try at the last. Please start the session. Okay, sir. Sir is waiting, है ना? और screen share दे दीजिए और बाकी सबको mute कर दीजिएगा, please. Over to you, Siddharth sir. Please continue. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. प्रोफेसर अभय काकड़े मेरे मित्र, मेरे सहपाठी, जब इनका फोन आया कि पोस्ट कोविड एरा पर बात करनी है तो मेरे सामने अब दो समस्याएं आ गई. पहली तो ये पोस्ट कोविड एरा में मैं खुद से कैसे बचाए रखूं, और दूसरा कि अब मुझे बोलना है. ये बोलने की समस्या जो है ना, ये मेरे लिए उससे भी बड़ी थी. 1 मिनट का समय लेता हूं. एक मित्र हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, इसलिए. हेलो. Yes, sir. Sure. सोलंकी जी, मैं पूछना चाह रहा हूं, आप एडमिट करते हैं तभी एडमिट होते हैं या कोई लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं सर. मैंने अभी वो कर चुका हूँ. आप बिना ओपन कर दिया है? कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंक और आईडी पासवर्ड से. ठीक है. ओके.
मैंने वो आईडी और पासवर्ड दोनों दिया है, उसी से मैंने लॉगिन किया। जी जी सर। अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो फिर मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा। यस मैं सेशन चालू हो गया। यस मैम। हेलो, सभी के लिए ओपन कर। मैं तो मेरे लिए अब ये दो समस्याएं हो गई। पहले तो पोस्ट कोविड एरा के लिए मुझे खुद को बचाए रखना है और अब बोलना भी है। बोलना मेरी प्रवृत्ति नहीं है, कुछ करने की बात होती है तो इजी था मेरे लिए। तो मैंने अभय जी से ही पूछा कि भाई कुछ मदद ही कर दो, कैसे बोलना रहता है, तुम तो प्रोफेसर हो, तुम तो पूरे दिन भर बात करते हो। तो अभय जी ने बोला उसमें क्या है, यदि तुम्हें अपॉर्चुनिटी लगती है तो अपॉर्चुनिटी पर बोल दो, यदि तुम्हें लगता है कि बहुत खराब होने वाला है कुछ तो उसके बारे में बोल दो। अब एक ही चीज के दो पहलू, मैं किसके बारे में बोलूं? और साथ ही ऐड इन्होंने एक और चीज करी, अरे बहुत लोग अभी तक बोल चुके हैं, मतलब मेरे लिए अब नया भी कुछ नहीं बचा है। तो ऐसी समस्या के बीच में मुझे आप लोगों के सामने कुछ बात रखनी है, और दुविधा ऐसी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? अब क्या अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या विषमताएं हैं? अब मेरे लिए भी सोचना अब मैंने शुरू किया, क्योंकि मैंने टॉक्स तो बहुत सुने, पर क्यों सुन रहा हूं ये तब तक मैंने नहीं जाना जब तक मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। तो आज जो मैं बात कर रहा हूं, वो जो बात कर रहा हूं वो उस सत्य के बारे में है। सत्य एक है, पर लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए आपके जो प्रोफेसर्स ये जो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं पोस्ट कोविड एरा पर, वो लेक्चर सीरीज है। ये लेक्चर सीरीज इसलिए है कि लोग अपना पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? ताकि ये जो अनिश्चितताएं हैं वो आपके सामने आ जाए। एक सत्य जो निश्चित है वो है चेंज। जो चेंज है ना, ये अनिश्चितताएं लाता है, और अनिश्चितताओं के साथ में आते हैं अपॉर्चुनिटीज, जो कि अनिश्चितताओं का अमृत कहें, और रिस्क यानी जोखिम या विषमताएं। So if you are able, somebody's mic is not muted. So if you are able to manage risk, if you are able to properly manage risk, then you are able to manage change. So right now, today, in this lecture, we will be talking about managing change. How to manage change. Because if I tell you something A and you start following me and I go wrong, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, I can be wrong. मैं यदि गलत गया तो आप भी साथ में गलत जाएंगे, मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं आज आपको सिखाऊंगा उठ के खड़े कैसे होना, उसके बारे में हम बात करेंगे। बिकॉज चेंज मैनेजमेंट इज समथिंग दैट वी रेगुलरली डू इन अवर बिजनेस। So to manage change, it is important that you understand your environment. आपको आपके एनवायरमेंट के बारे में जानकारी चाहिए। ये जानकारी कैसे मिलेगी? ये जानकारी मिलेगी सुन के। ये जो लेक्चर सीरीज हो रही है उसको सुनिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उसको पढ़िए, किताबों में पढ़िए, और डेटा कलेक्ट कीजिए। डेटा कलेक्शन ये जरूरी है, अनबायस्ड डेटा कलेक्शन ये बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में खुद एनालाइज कीजिए कि मेरे हिसाब से ये होगा, पर दूसरे का व्यू पॉइंट भी याद रखिए। अपना खुद का एक व्यू पॉइंट तैयार कीजिए। ये व्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो। परंतु ये भी संभावना है कि आप हेलो
क्या सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रही है? Sir, हेलो, स्क्रीन हट गई अभी। आप विजिबल हो सर। सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। जी जी। नाउ इट्स ओके। हाँ, मैं बात कर रहा था कि एनालाइज योर व्यू पॉइंट कंटिन्यूअसली, आइदर यू विल बी रॉन्ग और यू विल बी राइट, बट डेफिनेटली यू नो द पाथ, इवन इफ यू आर रॉन्ग यू नो विच पाथ टू टेक। इसलिए लेक्चर सीरीज सुनना और अपना व्यू पॉइंट क्रिएट करना ये जरूरी है। सो टुडेज टॉक, आज जो हम ये बात करने वाले हैं ये एक बहुत ही विशेष चीज अभी हुई लॉकडाउन के समय। लॉकडाउन के समय क्या हुआ कि जब हम लोग अपने घर में बैठे थे ये सोचते हुए कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, तब काफी सारी उथल पुथल पूरी दुनिया में हुई। और वो क्या उथल पुथल थी? काफी सारे लोगों की जॉब छूट गई, काफी CEOs, many CEOs lost their job. We saw petroleum crisis and the world was in danger. परंतु जब हम हताश थे, निराश थे, घबराए हुए घर में बैठे थे ना, उस समय भारत का उद्यमी जो है वो इन एडवर्सिटीज को, इन विषमताओं को अपॉर्चुनिटीज में बदल रहा था। उसी दौरान जिस समय ये विषमताएं भारत को घेरे हुए थी, उसी दौरान गारमेंट इंडस्ट्री के 80% ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके थे। उस दौरान गारमेंट इंडस्ट्री फिर से खड़ी हुई और आज हम पीपीई किट के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं चाइना के बाद में। चाइना वाज एन एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर, बट इन नो टाइम वी आर नाउ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई किट इन द वर्ल्ड। आप लोग कॉर्पोरेट न्यूज फॉलो करते होंगे, नहीं भी करते हो तो फेसबुक के बारे में सबको जानकारी होगी, रिलायंस, मुकेश अंबानी के बारे में सबको जानकारी होगी। एक बहुत बड़ी डील इस दौरान हुई जहां रिलायंस और फेसबुक साथ में मिले हैं, इनके जॉइंट वेंचर की डील। साथ ही एक और डील हुई है रिलायंस के छोटे किराना व्यापारियों के साथ में होने वाली है डील। अब आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिए और समझिए कि जब इतनी उथल पुथल जब हो रही थी तो कोई व्यक्ति एक ऐसा था जो अपना चेंज बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर रहा था। इन डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको दिखेगा कि एडवर्सिटीज में कुछ लोग बहुत ही बेहतरीन काम कर चुके हैं। सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन somebody changed, somebody adapted. रिलायंस जो कि इस पेट्रोलियम क्राइसिस का सबसे जबरदस्त जिसको हिट करने वाला था, मुकेश अंबानी जहां बहुत जबरदस्त हिट होने वाले थे, वहां पर फेसबुक के साथ में कोलैबोरेशन करके उन्होंने एक किराना व्यवसाय में नए डायमेंशन लाने की संभावना तलाशी। ही चेंज्ड, he adapted to the situation, and all this happened very fast. So now the mantra second is adapt to the change. Third is speed, do it quickly. And fourth, most important, is efficiency. Efficiency is most important of this all. And in agile technology ये टर्म जो है ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने हमें दी है, पर एक मैकेनिकल इंडस्ट्री भी उतनी ही अजाइल हो सकती है। ये हम लोग अजाइल टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। सो टुडेज टॉक, अभी जो मैंने बताया आपको, आई टॉक्ड अबाउट मैनेजिंग चेंज। नाउ टुडेज टॉक इज अबाउट हाउ टू डू इट। हम लोग चेंज कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में बता चुका। अब एक एग्जांपल के तौर पर आज का ये एनालिसिस है। एनालिसिस कैसे करें? तो हम डेटा इकट्ठा करते हैं। सेक्टर वाइज एनालिसिस करने के लिए सेक्टर वाइज डेटा इकट्ठा करा, उसके बाद उस डेटा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम
कंक्लूजन निकालने के लिए हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं हमारे पास में, ये देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मैं इस चेंज के लिए तैयार हूं। एक वर्ल्ड वाइड सिनारियो पहले देखा, हिंदुस्तान का सिनारियो देखा, फिर मैं मेरा देख रहा हूं कि क्या मैं जॉब के लिए तैयार हूं, और फिर इसके बाद में मैं देख रहा हूं कि मेरा पहला कदम क्या होगा, मेरा रेज्यूमे कैसा दिखना चाहिए। तो यदि कहीं जॉब रेडीनेस या रेज्यूमे के दौरान हमारी मीटिंग एंड हो जाती है तो प्लीज डू ज्वाइन बैक, क्योंकि आखिरी के दो टॉपिक्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं हमारे सामने जो ये सेक्टोरियल पर्सपेक्टिव है उसकी बात करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ में इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज है, जैसा मैंने बोला अपना व्यू पॉइंट क्रिएट करने की एक कोशिश है। तो मैंने सेक्टर्स दिए हैं, आप देखिए कि आप इधर ये जो राइट साइड का कॉलम मैंने ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्या ये या रेड जोन में रहेगी। यदि आप रेड कहते हैं तो आप रेड लगाइए। होटल इंडस्ट्री का क्या होगा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का क्या होगा, थोड़ा विचार कीजिए। और जब आपको लगने लगेगा कि ये पूरा का पूरा जो सिनारियो है वो रेड हो गया है, तो ये ध्यान रखिए कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है, इसमें एक बदलाव लाने की जरूरत है, अल्टरनेटिव्स खोजने की जरूरत है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दोज अल्टरनेटिव्स। सो व्हाट अल्टरनेटिव्स वी कैन हैव, लेट्स डिस्कस ऑन दोज अल्टरनेटिव्स। सो ट्रैवल का अल्टरनेटिव जो होगा, ऑलरेडी ट्रैवल खुल चुका है, एयरलाइन ट्रैवल शुरू है, ट्रेन जो बंद थी वो फिर शुरू हो गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में शुरू होगा। परंतु एक नया प्रोडक्ट बाजार में आया जिसका उपयोग हम कभी नहीं करते थे, जूम। और ऐसे ही नमस्ते इंडिया और ऐसे ही कई अनेक वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म्स अब आएंगे, जिसके कारण ट्रैवल उतना नहीं रहेगा, परंतु वर्चुअल मीटिंग और ये वाले जो एप्स हैं इनका बाजार, एक नया बाजार क्रिएट होगा। सो देयर इज इमेंस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इस अपॉर्चुनिटी में सबसे बढ़िया बात यह है, आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए जितनी नहीं है ना, उतनी ही आपके लिए है। मैं भी नहीं जानता हूं कि आगे क्या होगा, आप भी नहीं जानते हैं आगे क्या होगा। आप में वो एनर्जी है, शायद वो एनर्जी आपको उस लेवल पर लेकर जाएगी जो आपकी सोच को एक नया आयाम देगी। टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे होगी, यदि इस पर विचार करेंगे तो रिसोर्ट्स रहेंगे, परंतु अब की बार खाना जो है वो आप खुद बनाएंगे। शायद इस टाइप की कुछ नई व्यवस्था, जिसको सर्विस अपार्टमेंट्स कहते हैं या स्वीट्स बोलते हैं, जहां पर आप खुद अपना खाना बनाते हैं, ऐसी कुछ व्यवस्था होगी। होटल्स का हम सुन ही रहे हैं कि टेक अवेज रहेंगे। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, अक्सर आपने सुना होगा, काफी सारे लोगों को सुना होगा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज गोइंग टू गो डाउन डेफिनेटली। पर एक खबर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, आपने यदि फॉलो की हो तो जिस दिन लॉकडाउन खुला था ग्रीन जोन में, उस दिन हिंदुस्तान में 1 घंटे के अंदर 10,000 मोटरसाइकिल्स बिक गई। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? 10,000 मोटरसाइकिल्स 1 घंटे के अंदर बिकना, ये निश्चित ही कुछ बड़े चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। ये बता रहा है कि हाँ, अब जो है, अब ये लोकल ट्रांसपोर्ट के दिन जो है वो थोड़े दिन के लिए मुश्किल होने वाले हैं। अब जो है, अब हर कोई अपना 2 व्हीलर चाहेगा। जो 2 व्हीलर वाला है वो 4 व्हीलर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अपने आप को सेफ करने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लाल दिन अभी आए नहीं है, खराब दिन अभी आए नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलेगी जरूर, परंतु जो लग्जरी व्हीकल्स हुआ करते थे, शायद उसमें थोड़े समय के लिए एक रोक लग जाएगी। और मेरी बात आप नोट करके रख लीजिए कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 1-2 साल में बहुत ही बड़े नए इनोवेशंस के साथ में प्राइसेस देगी। कुछ ऐसे व्हीकल्स जो आपने कभी देखे नहीं थे वो आपको देखने मिलेंगे। हाँ, लग्जरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम होंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ जो हुई है ना, वो स्पोर्ट्स और सिनेमा इंडस्ट्री को हुई है।
और उसके कारण हमें हुई है। भाई मेरे दो, अनुष्का और विराट, दोनों के दोनों बेरोजगार हो गए बेचारे। हाउ आर दे गोइंग टू मेक अ कमबैक? प्रोबेबली नेटफ्लिक्स, प्रोबेबली अमेजॉन प्राइम, वहां पर हम लोगों को इनको देखने मिलेगा। प्रोबेबली अब आईपीएल जो होगा वो टीवी पर ही होगा, या ऐसे कुछ व्यवस्थाएं आएंगी। इवेंट्स जो हैं, मैंने जितनी कॉन्फ्रेंसेस, जितने सेमिनार्स, जितने इवेंट्स, जितने अभी अटेंड किए इन 15 दिनों में, उतने लाइफ में कभी नहीं किए थे। दिन के 4 सेमिनार्स में अटेंड कर रहा हूं। तो ये वर्चुअल मीटिंग्स जो है ना, ये डेफिनेटली अब आगे आने वाला है। टेक्निकल गैजेट्स आएंगे आगे, और फूड इंडस्ट्री, इसके बारे में मैं खास बात करूंगा कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सदाबहार है, मैकेनिकल इंडस्ट्री वैसे ही चलती रहेगी। तो आइए अब हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती हैं। जब मैं एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूं तो मैं किसी मैकेनिकल इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूं, या किसी, एक एंटरप्रेन्योर जो रहता है ना, वो एक होलसम अप्रोच लेकर चलता है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स डेफिनेटली, इनका एक नए प्रोडक्ट्स बाजार में आएंगे जिसे हम स्टूडियो बोल सकते हैं। क्योंकि अब आप देख, एम आई ऑडिबल में सुनाई, आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे बराबर से? हाँ सर, आ रही है जी सर, योर वॉइस इज ऑडिबल। चलिए सर, तो आगे चलते हैं। तो ये जो अभी हम लोगों को, जो अभी हमने सेक्टर्स देखे, उनका एनालिसिस किया, तो इन एनालिसिस का जो कंक्लूजन है वो हमें निकालना है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, मैं एज एन एंटरप्रेन्योर में क्या बना सकता हूँ, क्या बेच सकता हूँ। अधिकतर लोग सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, अधिकतर लोग साबुन बना रहे हैं, बेच रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज लेने वाला एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। उसी तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट्स, आपने देखा होगा डिजिटल प्रोडक्ट्स, वर्चुअल क्लासरूम्स। अभय सर को अब एक घर पे एक वर्चुअल क्लासरूम बनानी पड़ेगी, हमें नहीं मालूम कॉलेज कब खुलेंगे। तो जो वर्चुअल क्लासरूम में लगने वाला एक कैमरा है, जो बैकग्राउंड है, जो ऑडियो सिस्टम है, वो सारी चीजें, उसका एक मार्केट, उस व्यक्ति का जो पूरा ये दे सके, टोटल सॉल्यूशन दे सके, वो रहेगा। ऑनलाइन लर्निंग, अब एक जबरदस्त कंपटीशन आने वाली है। पहले ऑनलाइन लर्निंग जो था वो एक सपोर्ट के तौर पर था। हमारी स्कूल के जो स्कूल में जो लोग जाया करते थे, उनको यदि एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत थी तो ऑनलाइन लर्निंग हुआ करता था। अभी के दौर में उल्टा हो गया है, और आने वाले समय में प्रोबेबली ऑनलाइन लर्निंग जो है वो स्कूल्स को एक जबरदस्त कंपटीशन देने वाला है, जहां एडवांटेज ऑनलाइन लर्निंग का है कि इसकी लागत कम आती है, और स्कूल में एक बिल्डिंग, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी लागत जबरदस्त बड़ी है। तो एक बड़ा चेंज यहाँ आपको देखने मिलेगा। तो क्या आप इस चेंज के लिए अपने आप को कहीं पोजीशन कर सकते हैं? ऑनलाइन कंसल्टेशन, डॉक्टर्स जो हैं इन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू किया है, इंजीनियर्स ने अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू किया है, डिजाइन फर्म्स जो हैं वो ऑनलाइन डिजाइन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू किया है। ये बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। इसका रीजन है कि इंडस्ट्री में, मैंने शुरुआत में बोला कि एक बड़ा चेंज आया और लोगों की नौकरियां छूटी। तो क्यों छूटी? तो एफिशिएंसी जहां नहीं थी, वहां पर उन लोगों को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पर क्या उन लोगों की जरूरत ही नहीं है कंपनी को? तो फिर उनको लिया क्यों था? मतलब काम की जरूरत है, काम की जरूरत है, तो वो काम करने वाला कोई और व्यक्ति मार्केट में अब ढूंढा जाएगा। मतलब अब एक इंडस्ट्री माइक्रो प्रोजेक्ट्स किसी डिजाइनर को देंगे, और वो ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू अपना डिजाइन हम जैसे इंडस्ट्रीज को देंगे। मैंने मेरी मैन पावर कम कर ली, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कहिए या इनएफिशिएंसी के कारण कहिए, और मैंने ये प्रोजेक्ट्स ऑफलोड किए लोगों को। तो क्या आप ये मार्केट टैप कर सकते हैं? डेफिनेटली ये आपके लिए मार्केट है। कैसे करेंगे इस पर भी आगे बात करेंगे। ऐसा कर सकते हैं फ्रीलांसिंग करके। फ्रीलांसिंग पर भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे। एग्री बिजनेस, आप लोगों में से काफी लोग गांवों से आते होंगे।
जिसको ये शहर रास नहीं आया, परंतु शहर में रहना अब कंपल्शन है क्योंकि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है। पर यदि आप अपने रूट्स से जुड़े हैं और गांव वापस जाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज एन एंटरप्रेन्योर कि आप वहां जा सकते हैं। एक बिजनेस मॉडल मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है जिसको जो अभी बैठे बैठे मैंने डेवलप किया हुआ है इन दिनों में। तो क्या आप इस बिजनेस मॉडल पर विचार करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? गांव से आया व्यक्ति, खेती किसानी जिसका बैकग्राउंड है और जो एक मैकेनिकल इंजीनियर बना है, उसको कम से कम 20 साल का एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है, कम से कम 4 साल का मैकेनिकल का एक्सपीरियंस है। क्या हम इन दो चीजों को जोड़ सकते हैं? क्या हम उस एग्रीकल्चर को एफिशिएंट बना सकते हैं? क्या मैं मेरी साइंटिफिक थिंकिंग का उपयोग कर सकता हूं? क्या मैं हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक है जिसमें सॉइल में पेड़ नहीं उगाया जाता है, पानी में पेड़ उगाया जाता है। इस टेक्निक में काफी सारे फिल्टर्स का उपयोग होता है, काफी सारे मैकेनिकल डिवाइसेस का उपयोग होता है। और आजकल घरों में इस दौरान एक चलन चला है पिछले 60 दिनों में कि लोग अपना धनिया अपने घर पे उगाते हैं, अपना पालक अपने घर पे उगाते हैं। तो क्या एक एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं उनको ये एक यूनिट दे सकता हूं, सप्लाई कर सकता हूं कि ये मेरा यूनिट है, इसमें आप उगाइए, ये इसमें फिल्टर लगा हुआ है, इसमें आप अपना बस बीज डालिए, जो मैं सप्लाई करूंगा, दवाइयां मैं आपको दूंगा, जिस सॉल्यूशन में आपको ये उगाना है वो भी मैं आपको दूंगा, और आपको मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो गाइड करेगा। आप अपने घर पे किचन गार्डन उगाइए, आप अपनी सब्जियां खुद बनाइए और सेफ रहिए। तो ऐसी संभावनाएं भी बनती है। ये बिजनेस मॉडल भी विचार किया जा सकता है। एक खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति दो फील्ड्स को जोड़ रहा है, अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स का उपयोग करता है और एक बिजनेस मॉडल लाता है जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट लग रहे हैं, और यूट्यूब चैनल के साथ में वो एक टोटल सॉल्यूशन दे रहा है। घर पे किचन गार्डन कहें या हाइड्रोपोनिक्स गार्डनिंग कहें, उसका सॉल्यूशन देकर। हेल्थ केयर इंडस्ट्री आपने देखा हमने किस तरह से हाइड्रोक्विनाइन सबको सप्लाई किया। डेफिनेटली हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज गोइंग टू रिमेन देयर। और मैं हेल्थ केयर का एक अलग डायमेंशन देना चाहता हूं। दिस इज अबाउट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनका बॉडी बिल्डिंग में, मतलब वर्जिश करने में इंटरेस्ट होता होगा। अब मैकेनिकल इंजीनियर भी बन गए, पर मैं मेरा पैशन भी फॉलो करना चाहता हूं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरी मजबूरी बन गई है। नहीं, मजबूरी नहीं बनी है, आपकी स्ट्रेंथ बनी है। आप अपनी वो पैशन को, अपने स्ट्रेंथ को जोड़िए साथ में, और होम इक्विपमेंट बनाइए, होम जिम बनाइए, साथ में एक यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए। अपने कुछ जो इंस्ट्रक्टर्स जिनको बोलते हैं उनको अपने साथ में लीजिए, कंपनी बनाइए जो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जूम के माध्यम से उन लोगों को ट्रेनिंग दे सके। हमारी मीटिंग शायद अगले 5 मिनट में खत्म होने वाली है, और जो 2 बड़े टॉपिक्स हैं, हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर जॉब और रेज्यूमे मेकिंग, उसके 2 टॉपिक्स हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से ज्वाइन करें यदि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो इस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आई है आप लोगों के लिए, जो वर्जिश करने में, जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड थे, और जो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखिए किस तरह से आप अपने पैशन को अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स में लगा सकते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने कुछ एक उदाहरण दिए जो अचीवेबल उदाहरण है, जो आप कर सकते हैं, ऐसे उदाहरण दिए। परंतु एंटरप्रेन्योरशिप किसने करनी चाहिए, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट मार्केटिंग आजकल बहुत ज्यादा बड़ा चलन है, और इसमें इन्फ्लुएंसर्स आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ये भी एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है एज एन इन्फ्लुएंसर। तो अब हम देखेंगे कि कौन इन्फ्लुएंसर बन सकता है, कौन एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता है, किसने जॉब लेनी चाहिए, और जिसको जॉब नहीं मिलेगी वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करे। ये 4 सिचुएशंस हम अगली स्लाइड में देखेंगे। सर अपन एक ब्रेक लेके रिजॉइन कर ले क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? हाँ पुलकित सर प्लीज, 11:35 हो गए, 40 मिनट हो गए, तो आप टर्मिनेट करके नया सेशन, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज रिजॉइन अगेन द सेशन। पुलकित सर विल रिज्यूम इट। ठीक है।
Okay. अभी हम लोग इसके बाद में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।